Someone said, when fear knocks at your door, send faith to answer the door. किसी ने कहा जब भय आपके दरवाजे पर दस्तक देता है या खटखटाता है तो आप विश्वास को भेजिएगा दरवाजों को खोलने के I लिए। often said it and once again retreat. मैंने ये हमेशा कहा है और फिर एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, Fear and faith cannot coexist. विश्वास और भय साथ में नहीं रह सकते हैं। Wherever fear is, faith cannot be, and wherever faith is, fear cannot be there. जहाँ पे भय है वहाँ पे विश्वास नहीं ठहर सकता है, जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे भय टिक नहीं सकता है। Shalom and welcome to this devotional once again in the name of Jesus. शालोम और पुनः डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। We are on a series which is titled as Winning Over Fear. हम सीरीज में है जिसका शीर्षक है भय पर जय पाना। Yesterday we saw part 1 कल हमने पहले भाग को देख लिया and learned some of the very precious lessons from the life of David, और दाऊद के जीवन से मौल्यवान सीखों को हमने सीखा, especially from the Psalms 27. विशेष रूप से भजन संहिता 27 में हमने देखा था। This morning that the Lord wants us to continue in the same thing. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर चाहते हैं कि वही बातों को उसी बातों में या वही बातों में हम आगे बढ़ें। Let's open our Bibles to a very popular passage in the parables, among the parables in Matthew. आइए हम यीशु मसीह के दृष्टांतों को जो उन्होंने दृष्टांतों को बताया है उन दृष्टांतों में देखते हैं। Let's look at Matthew chapter 25, only verse 25. और जाना माना ये दृष्टांत है मत्ती 25-25वां वाक्य। It says, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. मत्ती 25-25 सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। Let me just give you a brief background to this particular place. इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। There was a master एक स्वामी थे, who gave talents to his servants. उन्होंने अपने सेवकों को चंद सिक्के दिए हुए थे To some he gave 5 talents, और किसी को जो है उन्होंने 5 दिए to another he gave 2 talents, और कोई को जो है 2 दिए to another he gave 1 talent. और किसी को 1 दिया And he said, go out and invest, और कहा कि बाहर जाकर इसको निवेश करो, do business, व्यवसाय करो इसके साथ and bring back the profit. और जो भी तुमको इससे फायदा होता है वो फायदे को ले आओ। The one with the 5 talent and the one with the 2 talent brought forth respective benefits back. और जिसके पास 5 सिक्के थे उन्होंने जो उन्होंने कमाया था उन्होंने लाया, जिसके पास 2 था जो उन्होंने कमाया था उन्होंने लाया। But the one who received only 1 talent, लेकिन जिसके पास 1 था this was his answer. इसका जवाब ये था, He said, I was afraid and went and hid your talent in the ground. वो कहता है मैं डर गया था और मैं जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में मैंने छिपा दिया। This morning, if possible, I want us to underline, I will highlight that word, these words, I was afraid. और इस सवेरे के वक्त जो है मैं चाहता हूँ कि आप उस वाक्य को आप अंडरलाइन कीजिएगा कि मैं डर गया। There is a lesson that the Lord Almighty wants us to learn here. और यहाँ पे परमेश्वर कुछ हमको सिखाना चाहते हैं। What's the lesson here? क्या सिखाना चाहते हैं? Fear makes us to be तो unproductive. देखिए भय हमको लाभदायक होने के लिए नहीं देता है। Fear puts us, rather stops us from doing anything that is worth its while. और भय जो है हमारी प्रगति को रोक देता है। Whether it is singing in the choir in your church, आपकी कलीसिया में गीत गाने के बारे में या हो or witnessing to somebody about the Lord Jesus Christ, या फिर यीशु मसीह के बारे में किसी को बताना हो, or even sowing in the church on a Sunday morning. या रविवार के दिन कलीसिया में बोलने की बात हो, For that matter, even walking with your wife, your spouse, with lot of love. आपके पत्नी या पति के साथ जो है प्रेम पूर्वक चलने के बारे में क्यों ना You हो। know, at every place it can put a brick on you. हो सकता है कि ये डर की वजह से आपके जीवन में ब्रेक आ सकता है। It can make you to one day, it can make you to feel fearful and not do that very thing. और उसके क्योंकि भय आपको जकड़ लेता है तो जो करना होता है आप कर नहीं पाते हैं। When the rest of them are going out and singing in the choir, बाकी के लोग जाकर जो है आराधना की टीम में गाना गाते हैं, the गीत गाते हैं। the fear of not being as good as others can make us not to step out. और क्योंकि हमें भय रहता है कि हम दूसरों से अच्छा नहीं गा पाएंगे और नहीं गाते हैं, उसके वजह से हम आगे बढ़ते नहीं हैं कुछ करने के लिए। The fear of what if I share the gospel with somebody, how will they respond? That fear can stop us even witnessing. और ये भय कि मैं अगर सुसमाचार किसी को सुनाऊं तो क्या होगा, कैसे प्रतिक्रिया होगी, ये भय हमें रहता है और इसीलिए हम सुसमाचार का प्रचार भी नहीं कर पाते The हैं। fear of sowing and not having enough
can make us to stop sowing in the kingdom of God. और ये भी भय, अगर मैं ये बोऊं, ये पैसा बोऊं तो मेरे पास में कुछ नहीं रहेगा, तो वो भय जो है हमको परमेश्वर के राज्य में बोने से रोकता है। It's rather unfortunate, many of them, I have heard many of them even say this, if I show more love to my spouse, it's quite possible I may raise the expectation of my spouse to love even more. और मैंने कईयों को ये कहते हुए सुना है, ये दुर्भाग्यवश कहते हुए सुना है कि अगर मैं अपने साथी या संगनी से ज़्यादा प्रेम करूं तो मैं उनकी अपेक्षा को मैं बढ़ाता हूं। I have heard especially men come and talk to me and tell me, Pastor, I do not want to raise the expectation of my wife. और मैंने सुना है पुरुष लोग आकर मुझसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने पत्नी की अपेक्षा को बढ़ाऊं। If I take my wife out for shopping once, अगर एक बार मैं अपने पत्नी को जो है शॉपिंग करने ले जाऊं, she will expect every weekend that I should take her out for shopping. तो वो अपेक्षा रखेगी कि हर वीकेंड में मैं उसको शॉपिंग ले जाऊं। That fear is making this man not to be what he's supposed वो to be. भय की वजह से ये पुरुष जैसे उनको होना है वैसे नहीं बन पाते हैं। It's rather unfortunate by doing so that this person is missing the precious moments with that spouse. और दुर्भाग्यवश ऐसे करने से ये जो व्यक्ति है अपने साथी या संगनी से वो मूल्यवान समय बिताने से चूक जाते हैं। My brothers and my sisters, let me say this very clearly. Fear puts a brake on our very being and makes us to be unproductive wherever that we go. और भय जो है हमको मानो रोक देता है और हम प्रगति नहीं कर पाते हैं जहाँ कहीं भी हम जाए। I loved what Jesus Christ said in Matthew chapter 6 verse 25. और यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय में 25वें वाक्य में बहुत सुंदर कुछ कहा है। He says, take no thought of your life. उन्होंने कहा कि अपने जीवन के बारे में सोचो मत। Live a life that is fearless, trusting God, holding on to Him, putting faith everywhere to action. और ऐसे जीवन को व्यतीत करें जहाँ पे कोई भय नहीं है और विश्वास को आप क्या कार्य में ला रहे हैं। To put it in a simple way, that what Jesus is saying, that try to live a life that is fearless. Don't even allow the thoughts of fear enter into your being. और यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि आप साहसी जीवन को जीना और होने मत देना कि भय तुम्हारे अंदर प्रवेश कर पाए। He said that I will never leave you nor forsake. यीशु कहते हैं कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। The word of God says that God will protect us, preserve us and take care of us. वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेंगे, हमको बचाए रखेंगे, हमारी देखरेख करेंगे। All we need to do is nothing but just hold on to that word and stay put in that word. हमको ये सिर्फ करना है कि वो वचन को पकड़ कर रहना है और उस वचन में हमको दृढ़ बनकर खड़े रहना है। Bottom line is, when God is with you, who can stand against you? देखिए ये सत्य बात है, जब परमेश्वर आपकी ओर से है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, you know the fear, you can see it in every action of us anytime that we go out and do anything. और देखिए भय जो है हमारे हर एक हाव भाव में, हाल चाल में दिखाई देता है जब हम कुछ करने जाते हैं। All you need to do is nothing but just watch your own actions. आपको सिर्फ ये करना है कि आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से आपका चाल ढाल है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। All you have to do is nothing but just check every thought that crosses your mind. आपको सिर्फ ये करना है कि जो विचार आपके मन में चलते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Dissect your thoughts and see if there is any fear there. आप अपने विचारों को थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देख लीजिएगा, क्या भय है वहाँ पे? Wherever you see fear, जहाँ कहीं भी आप भय को you देखते हैं, have to take a step of faith there. वहाँ पे विश्वास के कदम को उठा लेना I है। repeat again, wherever you see fear in any of your action, make sure that you take a step of faith there. आपकी क्रियाओं में जहाँ कहीं भी आप भय को देखते हैं, आप विश्वास के उस कदम को उठाना। When you do that, जब आप ऐसा करते हैं, you are dispelling every bit of darkness and you're bringing faith into action. आप जो है अंधकार को वहां से हटा रहे हैं और आप विश्वास को कार्य में ला रहे हैं। You are doing away with every deception of the devil and bringing the light of God into the life. और देखिए आप शत्रु के भ्रम को तितर बितर कर रहे हैं और आप यीशु के प्रकाश को वहां पे ला रहे हैं। It is then that you will see yourself progressing in leaps and bounds. तब जाकर आप देखोगे कि आपके जीवन में प्रगति होगी, आप आगे बढ़ पाओगे। It's then you will start progressing every realm, every area of your life. तब जाकर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बढ़ पाओगे। I want to say this and
And with this, I want to close. और मैं ये कहकर समाप्त करना चाहूँगा। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, wherever faith is, fear cannot be. जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे भय नहीं हो सकता Wherever है। fear is, faith cannot be. जहाँ पे भय है वहाँ पे विश्वास टिक नहीं सकता है। Except fearing God, you are not required to fear anyone. सिर्फ परमेश्वर का भय मानिएगा, बाकी किसी के भय मानने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। Any other fear is sprouted from the pit of hell. और देखिए परमेश्वर का भय रखिएगा, बाकी सारे भय जो है वो नरक की खाई से है। Dispel that doubt, dispel that fear, and you will see God and His hand manifest over your life. उस भय को अपने जीवन से निकाल दीजिएगा और देखिएगा कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में कार्यशील होगा। With these thoughts, I want us to go into the week. इन विचारों के साथ सप्ताह में जाइएगा, Go into the day. दिन में जाइएगा। As you do that, जैसे आप ऐसा करते the हैं, Lord Almighty shall bless you immensely in the name of Jesus. परमेश्वर आपको आशीषित रखेंगे, अनगिनत आशीषों से आपको नवाजेंगे यीशु मसीह के नाम He से। shall make you to be productive in the name of Jesus वो Christ. आपको प्रोडक्टिव बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। God bless you. प्रभु आपको आशीषित You रखे, have an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए।